Another job that one can seek out from physical education is being a physiotherapist. Now, physiotherapist, as complex as it sounds, is a special doctor for sports person who can treat them into healing their injuries जो उन्हें स्पोर्ट्स खेलने के दौरान मिली है या वैसे किसी भी तरीके की उनको कोई प्रॉब्लम है जो स्पोर्ट्स की वजह से है या जो स्पोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है उनको हील करने के लिए या उनको ट्रीट करने के लिए या क्योर करने के लिए जो स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं जो स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स पर्सन को ही प्रिस्क्राइब्ड होते हैं दे कम अंडर फिजियोथेरेपिस्ट. So the people who care about the physical well-being of the sports persons who cure their diseases, heal their diseases are physiotherapists. They too are highly qualified and highly paid and also highly in demand. Now specialist of a game. अब ये सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन being a specialist of a game is a very difficult job. One person has to be knowledgeable about the sports, about the traditions of the sports, about the rules and regulations, about the latest changing trends of the sports, and about the latest achievements in the sports, past achievements plus the latest achievements. Being a specialist becomes very difficult because you need to deal with your own information plus the information that comes from different other people. So being a specialist of a game is difficult, but it is also very essential if a person has to play a sports, has to lead a sports, or has to lead a career in sports or in any other category of sports. A person has to be a specialist of the game. Yoga instructor. Now yoga instructor is one among the latest changing trends because yoga again has become a trend in our country, and yoga instructor is highly in demand because people today have many postural deformities, many physical disabilities which lead them into so many physical difficulties that they do require people who can teach them about yoga. And yoga is a very essential part from anywhere in life. Yoga can lead you through healing your diseases, to different deformities, through different problems such as the other physical activities can help you. इसी तरीके से योगा जो हमारी कंट्री में एक बार फिर से नया ट्रेंड बन गया है. सो योगा इंस्ट्रक्टर इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब वन कैन सीक आउट फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन. One can also become biomechanics is also another field in physical education. Biomechanics is a very complex term and has also a very complex explanation to it. क्योंकि जैसे हर फील्ड में हमें किसी ना किसी तरीके के रिसर्चर्स चाहिए होते हैं किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, लिटरेट रिसर्च के लिए, या कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें हमें डिफरेंट रिसर्चर्स चाहिए होते हैं. फिज़िकल एजुकेशन में भी हमें रिसर्चर्स चाहिए जो हमें आज की प्रॉब्लम्स, पिछली प्रॉब्लम्स या कुछ भी नया इन फिज़िकल एजुकेशन के बारे में रिसर्च कर सकें. बायोमैकेनिक्स जो होते हैं दे हेल्प अस इन defining and divining different tools and different strategies in our games जिनको हम करने से हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं. टूल्स बनाने से जिनसे स्पोर्ट्स खेलना आसान हो सकता है या मज़ेदार हो सकता है, विच ऑल्सो हेल्प अस इन मेकिंग आवर लाइफ ईजियर. जैसे कि जैसे क्रिकेट के लिए हमें डिफरेंट हमारे लिए प्रोटेक्टिव शेल्स होते हैं या डिफरेंट तरीके के बैट्स बनते हैं, डिफरेंट तरीके की पिच डिसाइड की जाती हैं. उसी तरीके से जो रिसर्च होती है किसी भी तरीके की जो फिज़िकल एजुकेशन में रिसर्च होती है वो क्लाइमेट से रिलेटेड हो, वो चेंजिंग ट्रेंड से रिलेटेड हो, या लोगों की पसंद या नापसंद से रिलेटेड हो, चेंजिंग लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, इन सभी की जितनी भी रिसर्च होती है वो आती है biomechanics के अंडर. And biomechanics can help us in deciding how to do and what to do. So biomechanics is also a very highly in demand job for a physical education. फिज़िकल एजुकेशन में करियर बनाने के लिए हमें कुछ स्किल्स चाहिए. जैसे किसी भी फील्ड में किसी भी तरीके का करियर बनाने के लिए हमें स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होती हैं. फिज़िकल एजुकेशन डू नीड सम सॉफ्ट स्किल्स. फर्स्ट अमंग दैम इज़ इंटरेस्ट इन फिज़िकल एजुकेशन. अब दिस इज़ अ वेरी बेसिक सॉफ्ट स्किल या कोई भी तरीके की एक बहुत ही बेसिक स्किल है
क्योंकि किसी भी चीज़ में करियर बनाने के लिए हमारा उसमें इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, जिससे हमारे अंदर की एक स्पेशल फीलिंग हो, पैशन या ऑब्सेशन हो, जिससे हम एक करियर को फॉलो करना चाहें। एंड इंटरेस्ट इन फिज़िकल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ करियर इन इट। गुड पर्सनैलिटी एंड गुड हेल्थ। अब ये एक कॉमन नॉलेज है कि फिज़िकल एजुकेशन विल हेल्प यू इन मेकिंग ऑफ अ गुड पर्सनैलिटी एंड ऑल्सो गुड हेल्थ, क्योंकि आप हमेशा ही फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं। सो हैविंग अ गुड पर्सनैलिटी इज़ अ प्लस एंड हैविंग अ गुड हेल्थ इज़ नेसेसरी, ताकि आप फिज़िकल एजुकेशन में एक करियर बना सकें। क्योंकि किसी भी इंसान की जिसकी पर्सनैलिटी ठीक नहीं होगी, उससे नज़र आता है कि दैट पर्सन इज़ नॉट नॉलेजेबल अबाउट फिज़िकल एजुकेशन। थर्डली, हमारे पास एक साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड इज़ अ बेसिक नीड ऑफ अ जॉब इन एनी फील्ड। साउंड माइंड हमारा तभी हो सकता है व्हेन वी आर नॉलेजेबल अबाउट अ थिंग, कि हमारे पास नॉलेज है अबाउट आवर सराउंडिंग्स, अबाउट व्हाट वी लर्नड, या हम आगे क्या करना चाहते हैं, या क्या हम कहाँ से हम आए हैं। अ साउंड माइंड इज़ अ एक्टिव माइंड। हमारा एक्टिव माइंड होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ इज़ गुड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। किसी भी फिज़िकल एजुकेशन के करियर के लिए हमारा गुड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस होना ज़रूरी है, जिससे पता चलता है कि हम फिज़िकली एक्टिव हैं, मेंटली एक्टिव हैं, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, मतलब हम नॉलेजेबल हैं, हमें खेलना आता है या हमें खिलाना आता है। देन लीडरशिप एबिलिटी। अब लीडरशिप एबिलिटी इज़ नेसेसरी, क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन में हम एक स्पोर्ट्स को लीड कर रहे हैं, एक टीम को लीड कर रहे हैं। इवन इफ़ वी आर प्लेइंग इन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, वी आर लीडिंग आवरसेल्व्स इनटू अ मच वाइडर रेल्म। सो लीडरशिप एबिलिटी बहुत ज़रूरी है, जिससे हम खुद को भी संभाल सकते हैं एंड एक पूरी टीम को संभाल सकते हैं। अथॉरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी फ़िज़िकल एजुकेशन में इफ़ वी स्टार्ट अ करियर ऑफ बीइंग अ फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर और अ कोच, उसके लिए हमारे पास लीडरशिप एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम बच्चों को सही नॉलेज दे सकें, सही इन्फॉर्मेशन दे सकें। देन प्रॉपर नॉलेज। हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अबाउट डाइट, क्या हमें खाना चाहिए, क्या एक प्रॉपर स्पोर्ट्स पर्सन को खाना चाहिए, एक प्रॉपर टीम स्पोर्ट खेलने वाले को खाना चाहिए। डिफरेंट स्पोर्ट्स हैव डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑफ व्हाट दे शुड ईट एंड व्हाट दे शुड नॉट ईट, तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जो कोर्स हम कर रहे हैं या करवा रहे हैं की नॉलेज हमें होनी चाहिए, जिससे हम या ना तो खुद कुछ गलत सीखें, ना सामने वाले को कुछ गलत सिखाएं। थर्डली, अबाउट मेडिसिन इन स्पोर्ट्स इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सनस को किसी ना किसी तरीके की इंजरीज़ आती रहती हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि किस इंजरी में कौन सी मेडिसिन काम करती है एंड कौन सी नहीं काम करती है, या कौन से स्पोर्ट्स में कौन सी मेडिसिन की इनटेक अलाउड है या अलाउड नहीं है। देन बॉडी सिस्टम्स। हमें हमारे बॉडी सिस्टम